A very pleasant evening to all the viewers joining us in this session today. I'm certain you all have enjoyed our previous sessions, that is, Dhyan, Karma and Astrology, physical and mental well-being in this pandemic. All the topics were quite informative and relevant too at this particular time. Now, let us proceed with a lighter yet very interesting topic. Guess what? This is numerology. You must be thinking, what is numerology and why we have chosen this topic? So, numerology is a study of particular numbers, such as numbers in a birth date. These numbers are used to interpret a person's character, their supposed influence on human affairs, a glimpse into one's future, etc., etc. And now the question is, why numerology? Why we have chosen this topic? Again, the answer is, every time when we usher in a new year, we just think what this new year has in store for me, or whether I would be able to achieve my goals, or whether I would be able to manifest my dreams in this year. So many questions, but the answers lie only in the abyss of time. But you'll be glad to know that today we have renowned numerologist Adesh Goyal with us, who will help us unleash the unknown in this journey together. Let me introduce her to you. An experienced entrepreneur, an educationist, Adesh Goyal has been working in the field of numerology for past 10 years. She is trained in numerology, Vastu, and angel therapy by renowned teachers. She has been teaching students numerology and has helped many clients understand themselves, their life path, and make conscious life decisions based on these sciences from all over the world. She has deep knowledge of Indian mythology and scriptures and has been working to spread it among young children through storytelling sessions. Adesh Goyal is also an accomplished writer and poetess. She has several publications to her credit in various international journals and has participated in many literary conferences, reciting her poems based on life and its nuances. She is working with Rotary International for past 28 years for the development of the underprivileged sections of society. So we welcome Adesh ji on this platform. Over to you, Adesh ji. Thank you. Thank you so much, Seema ji, for your kind words. Let's start the program right away. सुख, समृद्धि, मैत्री, आनंद और हर्ष का वर्ष है 2022। देखें हर अंक के लिए यह क्या सौगातें और संदेश लेकर आया है। 2022 को हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करें तो 2 + 0 + 2 + 2 = 6, यानी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करने वाला अंक 6 बनता है। इस वर्ष 2 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, तो 2022 अपने साथ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी लेकर आया है। 2 और 6 वैसे भी फेमिनिन एनर्जी नंबर्स हैं, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अंक 1 की बात करते हैं। People born on 1st, 10th, 19th and 28th are number 1. Number 1 is governed by Sun, the king of the universe. यानी कि इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लीडरशिप, इनोवेटिवनेस, स्ट्रॉन्ग विल, आइडियलिज्म, सेल्फ डिपेंडेंस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो आदि होती हैं। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा करते हैं। जिस क्षेत्र में भी काम कारोबार करते हैं टॉप पोजीशन में काम करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। 2022 यानी 6 नंबर 1 नंबर का मित्र अंक है, सो यह साल इनके लिए एवरेज से बेटर रहेगा। बिजनेस में एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, जॉब में प्रमोशन, सैलरी हाइक्स के अवसर मिलेंगे।
फॉरेन कंट्री सेटलमेंट, अब्रॉड स्टडीज की पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी, रिलेशनशिप्स के लिए फेवरेबल साल रहेगा, हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। संदेश ये है कि इस बरस थोड़ा कोऑपरेट करके, थोड़ा बेंड करके, खास तौर पे फीमेल बॉस, कलीग्स, फैमिली मेंबर के साथ तालमेल बिठाकर टीम वर्क में अगर काम करेंगे तो अपनी सफलता को एंजॉय भी कर सकेंगे। अब हम 2 नंबर पे आते हैं। People born on 2nd, 11th, 20th and 29th are number 2. नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बेनाइन, सेंसिटिव, ब्यूटीफुल, केयरिंग एंड क्रिएटिव होते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, ईगो इनमें कम होती है, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। 2022 में 2 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, यानी फीमेल एनर्जी प्रधान ईयर है। तो 2 नंबर के लिए न्यू हाइट्स और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस का गिफ्ट लेके आया है। नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, सफेद चीजों और जल से जुड़े कारोबारों में, जॉब्स में अधिक कामयाबी मिलेगी, लव लाइफ में मजबूती आएगी, स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति के साधन बनेंगे, हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, इमोशनली भी कुछ मनभेदों की स्थिति बन सकती है, बुद्धिमानी से उन्हें रिजॉल्व करें। इस साल मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखें, सोच को एक्शन में कन्वर्ट करें, योग और मेडिटेशन करें। अगर माइंडफुलनेस के साथ रहेंगे तो यह साल आपके लिए यादगार साल बन सकता है। Thank you, Adesh ji. जी, Today you have actually helped me knowing more about myself, as my birth date is 20. वाह, So I will remember throughout the year to make it an action-oriented year and taking care of my emotions as well. That you said, na, yoga, meditation, mindfulness. So thank you. ओके चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। जी, आइए हम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पीपल born on 3rd, 12th, 21st and 30th are number 3 and number 3 is ruled by Jupiter, यानी देवगुरु बृहस्पति। 3 नंबर people are intelligent, intellectual, music lover, creative with great imagination and multitasker होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, इनका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा होता है। आईटी फील्ड, कल्चरल सेक्टर, एजुकेशन, कंसल्टेंसी आदि में बहुत अच्छा करते हैं। 3 और 6 मित्र अंक नहीं है, इसलिए यह वर्ष इनके लिए मिले जुले रिजल्ट्स लेके आया है। हेल्थ और रिलेशनशिप पर थोड़ा ध्यान देके चलें। जॉब, करियर, बिजनेस में एक्सपेंशन, प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का विचार कर रहे हैं तो सफल होंगे। सेकेंड हाफ विल बी वेरी गुड। फाइनेंशियली निरंतर धन आवक बनी रहेगी, तो खर्चे भी होंगे ही, पर डोनेट जरूर करें। अब हम 4 नंबर की बात कर लेते हैं। People born on 4th, 13th, 22nd and 31st are number 4 and number 4 is ruled by Rahu. 4 number people are generally very organized, disciplined, straightforward, rebellious और वक्त से आगे सोचने वाले होते हैं। ज्यादा सोशल नहीं होते, पर जितने भी मित्र बनाते हैं वे इनके लिए हमेशा खास होते हैं। आईटी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लकड़ी, लोहा, कलबुर्जों से जुड़े कामों में अधिक कामयाब होते हैं। शुक्र ग्रह का अंक इनका मैत्री अंक है, तो 2022 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी, धन संचय भी होगा, प्रेम वैवाहिक संबंधों में सफलता मिलेगी। हाँ, अपने से जूनियर्स को सपोर्ट करके चलेंगे तो अतिरिक्त सफलता मिलेगी। अपने रिजर्व्ड एटीट्यूड को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें तो लाइफ विल बी मोर लविंग एंड गिविंग। ओवरऑल अ गुड ईयर। अपना फोकस बना के रखें। अब हम 5 नंबर पे आते हैं, जो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है, हमारा मैत्री अंक है और हमारी भावना का नंबर है। 5th, 14th, 23rd को बॉर्न पीपल का बर्थ नंबर 5 बनता है। 5 इज रूल्ड बाय मर्करी यानी बुध। बुध करे शुद्ध। ज्ञान, गणित, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, स्पेकुलेशन आदि इनके नेचुरल ट्रेड्स। बहुत ही जिज्ञासु होते हैं ये लोग। दे आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल पीपल, impressive and attractive. Sales, marketing, garments, food, books related business में बहुत सफल होते हैं।
2022 इनके लिए बेटर देन बेस्ट ईयर रहेगा। जो भी काम कारोबार कर रहे हैं उसके उच्च स्तर की सफलता के योग बन रहे हैं। चेंजेस, प्रमोशन, सैलरी हाइक विल बी अ नॉर्मल फॉर नंबर 5। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड हाई एजुकेशन सब बहुत अच्छे रहेंगे। ऑल ओवर अ वेरी गुड हेयर। स्वतंत्रता प्रिय नंबर है 5, इसको आजादी बहुत पसंद है। सो लिमिट्स को क्रॉस ना करें, स्वयं को थोड़ा साथ कर रहे हैं, थोड़ा बांध कर रहे हैं। Here I have a question, Adesh ji. जी You सीमा can जी। say I have a doubt. Like you are saying, number 4 is rebellious, number 4 is organized, disciplined, and number 5 is Satantrata Premi, Milansar, friendly, and all that. जी So, do all the people born on, say, 14, 23, or number 4, number 31, they have the same attributes? Well, it's a very nice question, Seema ji. Actually, if I tell the truth और मेरी गणना अगर सही है तो ज्यादातर 4 वालों के जो ट्रेड्स हैं, कॉमन ट्रेड्स तो उनमें होंगे ही, पर जैसे 4 और 22 इज ऑल्सो 4, 2 + 2, पर वो 2 + 2 से जो 4 आता है वो चंद्रमा से आता है, क्योंकि दो नंबर मून से आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उनके अंदर, और 2 के भी गुण बहुत ज्यादा उनके अंदर आएंगे, 4 के थोड़े कम आएंगे। उसी तरह से 5 और 14 में भी, 14 में 1 + 4 से कॉम्बिनेशन 5 आ रहा है, तो उसमें सन और राहु दोनों के गुण आएंगे। तो नॉर्मली आप ये कह के चल सकते हैं, जो मैंने ट्रेड्स बताए हैं और जो चीजें बताई हैं, कॉमनली टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे आर ट्रू, बट then it depends on their destiny number and koa number and other numbers as well. I hope I have answered you. हर नंबर का योगदान रहेगा। जी जी, Good to know. Very interesting. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम 6 नंबर Yes. की बारी करते हैं, बारी ले लेते हैं। 6, 15, 24 यानी people born on 6th, 15th and 24th, their birth number is 6, which is ruled by Venus यानी शुक्र। 2022 शुक्र का ही साल है, तो बेसिकली इनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ही। These people are social, popular, attractive, trustworthy, luxury loving, emotional bonding and family values की इनकी बहुत हाई होती हैं। Year 2022 will bring life altering movements in 6 number people life. People working in fields of media, journalism, films, modeling, hotels, travel, वॉइस रिलेटेड वर्क्स में बहुत कामयाब होंगे। अब्रॉड वेकेशन के भी बहुत सुंदर अवसर बनेंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, मेहनत से 25% ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये इनका लकी ईयर है। हाँ, खान पान में थोड़ा ध्यान दें, ग्रेटिट्यूड अता करते रहें और ओल्ड एज होम्स में डोनेशन जरूर दें। अब हम 7 नंबर पे आते हैं, द मिस्टेक नंबर 7, 16th and 25th को बॉर्न पीपल का बर्थ नंबर यानी मूलांक 7 बनता है। 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु। ये लोग कल्चरल, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, रिसर्च में, ऑकल्ट साइंसेस में, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिव फील्ड्स में गहरी दखल रखते हैं। दे आर रियली हंग्री फॉर नॉलेज, थोड़े मिस्टीरियस, सीक्रेटिव, वन मैन आर्मी टाइप और बारीक सूझबूझ वाले होते हैं। मिलनसार तो काफी कम होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर was number 7. He did exceptional work in the creative field, literature, music, education, etc., etc. True example of one man army. This year 2022 7 नंबर के लिए इनकी स्पष्ट सोच और कामना की मैनिफेस्टेशन का साथ है। जो कुछ भी जिस क्षेत्र में पूरी लगन से करना और पाना चाहेंगे, उसके मौके इन्हें जरूर मिलेंगे। एजुकेशन बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, बट दे शुड ट्राई टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग विद देयर पार्टनर्स। लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अपने रूटीन को रेगुलेट रखें, केयरलेसनेस ना करें। अब हम आते हैं Adesh ji, जी sorry to interrupt. जी जी बिल्कुल पूछिए। Like while you were talking about Ketu Dev, like number 7, जी so I have also heard that Ketu brings disappointment. Or I can say as layperson, we have an unknown fear of Rahu Dev, Ketu Dev. तो क्या इनसे डरना उचित है, या ये प्लैनेट्स हमें डराते भी हैं कुछ अननोन
की तरफ से हाँ लेके सीमा जा जी, सकें। ऐसा नहीं नहीं, ये तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। सबके दिमाग में रहता है कि राहु और केतु जो है इनसे घबराना चाहिए। सारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, सारे ग्रहों के पास अपने अपने गुण और कमियां होती हैं, तो राहु और केतु से ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं 2020 वॉज ए राहु ईयर, 4 नंबर का साल था, कितनी उथल पुथल हुई है, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है राहु। पर क्या खराबी परिवर्तन लाया है? करोड़ों के लोग गए हैं, पर क्या उसने आपके आईटी सेक्टर में, क्या आपके उसने इंटरनेट में रिवोल्यूशन नहीं लाया है? आज डेफिनेटली 20 साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि हम एक इस वेबिनार के थ्रू कोई लंदन से, कोई हैदराबाद से, कोई मुंबई से, कोई गुड़गांव से मिलेगा और हम एक स्टेज वो मंच पे बात करेंगे? नहीं ना। दिस इज क्रिएटेड बाय राहु। सॉरी। सेम विद केतु। केतु थोड़ा वीतराग लाता है, थोड़ा अलूफ ग्रह है, पर जितने भी गहरी सूझबूझ के लोग आपके हुए हैं, रिसर्च वाले स्कॉलर्स हुए हैं, दे आर ऑल नंबर 7। MS धोनी द क्रिकेटर, सितारिश रविशंकर, लेजेंडरी रविशंकर, ऑल 7 नंबर 7। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई सा भी ग्रह खराब होता है या डरने वाला होता है, पर हाँ किसी के, हर इंसान, हर ग्रह की अपनी खूबियां हैं, दोष किसी के ज्यादा और किसी के कम। अब आपकी मीन्स झोली में डरना क्या है? नहीं है। नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, सब बहुत अच्छा करके जाते हैं। जी। नंबर अब 8 के इसके बारे में। बाद हम नंबर 8 पे आते हैं। People born on 8th, 17th and 28th have their birth number is 8. This number is governed by Saturn यानी शनि। शनै शनै सब होए। रितु जी ने अपनी वार्ता के दौरान बताया था कि प्राण वायु में के कारक शनि हैं, यानी प्राण वायु के साथ व्यक्ति का जन्म होता है और प्राण वायु के खत्म होते ही मृत्यु होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि 8 नंबर कितना महत्वपूर्ण नंबर है। नंबर 8, पीपल आर ब्लंट, ट्रूथफुल, गुड प्लानर्स, डिसीजन मेकर्स, गुड एडवाइजर्स, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ। लोहे, सीमेंट, आईटी सेक्टर, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, लॉ एंड जुडिशरी में बहुत सफल होते हैं। 2022 में इन्हें सपोर्ट भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी, पर रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलें। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान्स में सफलता मिलेगी। थोड़ा नॉन जजमेंटल रहें, जैसे पहले कहा था, नियम और लगन से हाथ में लिए काम को अंजाम जरूर लेके आए। अंक श्रृंखला का अंतिम अंक है 9। 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। इसमें बाकी सभी अंकों का कुछ ना कुछ समावेश जरूर होता है। People born on 9th, 18th, 27th, their birth number is 9 and 9 is ruled by Mars, यानी सर्वहितकारी मंगल। ये लोग तेज मिजाज, फियरलेस, आइडियलिस्ट, फेथफुल और सेवा भावी होते हैं। गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं। यूनिवर्सल लव इनमें बहुत स्ट्रांग होता है। बिग ड्रीमर्स होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल होते हैं। डिफेंस, एयरफोर्स, पुलिस, स्पोर्ट्स, एनजीओ आदि से जुड़े कामों में बहुत सफल होते हैं, देश को गौरव प्रदान करते हैं। 2022 में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप आदि अच्छे रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स कम हैं। प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीदने के योग बनेंगे। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। धन पक्ष मजबूत रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, उन्हें एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। यही करके मैं अपनी इस श्रृंखला को विराम देती हूँ और अंत में एक शेर कहूंगी। खुदा के पास तो देने के हजारों तरीके हैं, खुदा के पास तो देने के हजारों तरीके हैं, मांगने वाले तो देख तुझ में कितने सलीके हैं। धन्यवाद। Once again, thank you, Adesh ji, for this wonderful session. The world of numbers is so mystic, so unfathomable. Every number has its unique power, own strength, and weakness as well. Though briefly, but very skillfully, Adesh ji, you have disclosed what lies ahead in this year 2022 for each one of us. Whether it is number 1, it is number 6, or whichever number it is. Especially, I like the way where you told us कि कौन सा नंबर क्या संदेश लेकर आ रहा है। बर्थ डेट के आधार पर थोड़ी बहुत चर्चा आपने पर्सनल लाइफ पर भी की है,
प्रोफेशनल लाइफ को भी आपने टच किया है, एंड टॉप ऑफ दैट some tips and some remedies that you have shared with us, you have mentioned to us. I'm sure this will help our viewers to take conscious life decisions. Nevertheless, if anyone further wants to get detailed information about their birth date, they can freely connect Adesh ji through their phone number. And in the last, if anyone has any question regarding birth date, regarding numerology, you are free to ask. Over to you, Indira ji. Okay, my question is, जी what do you're looking at actually just the date, not the date of birth, which is more important. So 7 is like, 5 and 2 and 1 and 6 and 7 itself. But is that more important, or the addition of all the numbers in the date of birth? What number? You're only referring to the dates, isn't it? Yeah, absolutely you're right. Your question is really very, very relevant at this time. इंदिरा जी, हमारे पास जो है ना 5 या 6 नंबर होते हैं जिसके आधार पर अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी बेस रहती है, पर बर्थ नंबर के बेसिस पे आज जो मेरी टॉक थी बर्थ नंबर पे है, पर जो आप बात कर रही हैं डेस्टिनी नंबर की बात कर रही हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ होती है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव गॉट नेम नंबर, द टोटल ऑफ योर नेम which is a remedial number for us, वो भी उतना ही important होता है. बट मेनली जो है जब न्यूमरोलॉजी की गणना करते हैं तो वी कम बैक विद द बर्थ नंबर, बट डेस्टिनी नंबर and name number and core number are equally important. So if you want to know the details of your horoscope and numeroscope, then one has to consider all the numbers. Thank you very much. Thank you. Welcome. Seema, Adesh I ji. also have a question. There are live viewers, कुछ live viewers हैं जो हमारे शो को देख रहे हैं, तो उसमें एक सलोनी साहू है, उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है. She is saying कि मेरा date of birth 9 January 2004 है. Seema, it is 9th January 2004 and she wants to know about herself, Adesh ji. So 9th January 2004. 2004. She is live and she wants to, she's asking you. So, सलोनी जी, 9th नंबर जो है, as I told you कि 9th के लिए 2022 is a good year for them. एंड जो भी हो जिस क्षेत्र में भी, जहां तक मैं समझती हूँ आप किसी अपने ग्रैंडसन के लिए, किसी और के लिए, किसी बच्चे के लिए पूछ रही हैं, क्योंकि अभी sorry, she's herself. She's herself. So what is the year She's of a young birth? girl. 2004, Adesh ji. 2004. 9 January 2004. She is 17 years. हाँ, that's what I'm she saying. is 18 2004 अगर बर्थ ईयर है तो that person is asking for one's own education field. अभी वो मेरे ख्याल से +2 पास करके चुके हो रहे हैं या कर रहे होंगे +2 के लिए, तो उनके लिए इस साल के लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं. स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो सकती है, और जो भी वो एरिया चूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, उनसे आप कहिए मुझसे एक बार फोन पे बात कर लेंगे, मैं उनके और भी एरियाज जो हैं उनके जिसमें वो बहुत अच्छा करेंगे वो भी उनके बारे में बता सकती हूँ. बट जनरली दिस ईयर इज ए गुड ईयर फॉर 9 नंबर. जनरली इट्स ए गुड ईयर फॉर. तो चैट बॉक्स में अगर आप आदेश जी का फोन नंबर लिख दें तो. हाँ, मैं लिख देती हूँ. शी वाज थैंक यू फॉर आंसरिंग. शी वाज जस्ट आस्किंग कि फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स. अच्छा है, फ्यूचर इज गुड. 2022 इज अ गुड ईयर फॉर 9 नंबर. I hope she'll get her answer. Thank you, Seema. She'll contact you. I'm sharing. Yeah, sure. Please do. Go ahead. Subhash ji, you had a question. I think Indira has answered my question. She also asked the same question. Is it the date? Is the date of birth important, or the number of the whole? The day, month, and the year? Because normally when we talk about numerology, we talk about day, month, and the year, not just the date of the birth. सुभाष जी, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब दे देती हूँ. जैसे कि आपका 27 नवंबर है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका 9 नंबर 2 + 7 से आ रहा है. दैट इज मून एंड केतु का टोटल होके 9 नंबर आ रहा है. तो आपके अंदर 2 की जो है सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, 7 की रिसर्च इंक्वायरी भी होनी चाहिए, हंगर फॉर नॉलेज भी होनी चाहिए, और 9 की आपके अंदर फियरलेसनेस होनी चाहिए और यूनिवर्सल लव भी होना चाहिए. बाकी डिटेल्स जो हैं जब मैं आपका इंडिविजुअल होनोरोस्कोप पढ़ूंगी तो बताऊंगी. इतना मैं बता सकती हूँ आपको. Thank you.
Welcome, welcome, Thank sir. you very much. Any more questions? I think everyone has got their answers regarding their birth date. Okay. So thank you everyone for your time, and we'll meet very soon tomorrow. Hope you all enjoyed our session today. Thank you, thank you. Thank you. www. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Excellent, excellent.